Hello everyone, welcome to your channel Manoeuvre Education. So hope so guys, preparation is going good, and in today's session we will cover the important 50 question from the geography and economy. So last lecture we already discussed about the history and polity section, most expected question as per the trend, as per the question related to the CMAT, the way of asking the question in CMAT exam. So in this session we will focus on the top 50 question from the geography and economy. So not only 50 question, basically you should to get the idea how the question will frame फ्रॉम दिस टू सेक्शन. इट मीन्स जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये जो मैंने 25 क्वेश्चन दोनों पार्ट से डिस्कस कर रहा हूँ. सो इट्स नॉट ओनली 25 क्वेश्चन. इट मीन्स यू हैव टू गेट द आइडिया कि किस टाइप के रैंडम क्वेश्चंस जो डेप्थ लेवल के, इजी लेवल के, इट मीन्स उस क्वेश्चन से आप आइडिया कर सकते हो कि कैसा ट्रेंड होता है सीमैट एग्जाम का. तो बेसिकली इन दिस पार्ट, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन यू विल गेट द बेटर आइडिया, एंड आफ्टर दैट वॉट एवर द कंटेंट यू आर फॉलोइंग, सो अकॉर्डिंग टू दैट इफ यू विल प्रिपेयर, so definitely whatever the one or two question will come from the geography and one or two question which will be come from the economy, so easily you can cover. So your target should be score more than 50 plus in this exam. So just follow this strategy. Part 1 I already posted the one video which is related to the strategy part for the GK. It means important area like art and culture, sports, history, geography, polity. So you can also watch that video which will be very beneficial. And one more important thing, here is a social media link which is mentioned in the description. So you can join this group where I will share this PDF which I am discussing here. So ये PDF आपको exactly मिल जाएगा for the revision purpose. Just वीडियो को पूरा देखना, because यहाँ पे सारा कुछ additional information भी मैं discuss करूँगा which is also beneficial for you. And also you can follow on the social media platform which is very beneficial for you guys, because here we continue update the information. And don't forget to subscribe this channel because continue आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहते रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन. एंड वीडियो अच्छा लगे तो एंड में वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. नाउ हियर इज वन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइज. इफ यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ या फिर जो भी कंटेंट फॉलो कर रहे हो, सो हियर यू कैन एक्सप्लोर दिस प्रोग्राम विच आई विल डिस्कस इन अ डिटेल एंड ऑफ द वीडियो. Full course, it means where you will get the video lecture, shortcut method, sectional course and mock test and study material, whatever for your preparation if you need. So you can visit our website www.manoeuvreedu.com/mba-entrance and you can call on this number. So in detail program I will discuss about these program end of the video. Now see the question. So from each question just try to learn the depth and random किस मतलब इंटेंशन से ये क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, बिकॉज सीमैट एग्जाम में कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कि हिस्ट्री से एग्जैक्टली क्या आएगा, हिस्ट्री से एग्जैक्टली, पॉलिटी से एग्जैक्टली क्या आएगा. बट हाँ, जो ट्रेंड है 3-4 सालों का आप क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के बाद उसके बेसिस पे समझ सकते हो, कुछ भी रैंडमली आ जा सकता है एंड कुछ एरिया जहां पे आपको फोकस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन फॉर्म किया है, a black hole is, basically this question is from the geography as well as solar system. So my suggestion is what कि solar system की basic understanding at least अच्छे से कर लो. solar system क्या होता है, planet क्या होता है, nickname of planets क्या है, as well as जो रिसेंट करंट अफेयर्स में कुछ न्यू मून्स को डिस्कवर किया गया वो अपडेट इंफॉर्मेशन रखो, तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से कनेक्ट किया तो इजीली आप आंसर कर पाओगे. सो फॉर एग्जांपल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट स्टार विद द इंटेंस ग्रेविटेशनल पुल. तो जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन होता है, बेसिक इंफॉर्मेशन होता है सोलर सिस्टम के, उसके साथ साथ डिटेल इंफॉर्मेशन. इट मीन जो भी कंटेंट आप फॉलो कर रहे हो थोड़ा सा डिटेल में ट्राई करो अंडरस्टैंड करने का. नेक्स्ट है Sirius, the brightest star outside the solar system is also called. See, this question is also from the solar system, but थोड़ा सा हट के क्वेश्चन पूछा है. Cat star, dog star, fox star and lion star. What it's called? So it's a dog star. यहाँ पे मैंने डिटेल भी दिया है. So you can डाउनलोड दिस पीडीएफ फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन. लिंक जो रहेगा, लिंक पीडीएफ का नहीं होगा, रिमेंबर वन थिंग, पीडीएफ का लिंक नहीं होगा, लिंक होगा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप का, विच यू हैव टू ज्वाइन. वहां पे ज्वाइन करोगे, इस वीडियो को मैं वहां पे शेयर करता हूं, जो भी यहां पे डिस्कस होता है, जितने भी वीडियोस के वो वहां पे शेयर कर देता हूं, इजीली आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट. देखो ये इजी क्वेश्चन था, इसके पहले मैंने दो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन लिए, तो इसी टाइप के क्वेश्चन को बेसिकली आपको हैबिट एंड प्रैक्टिस करनी है. इट मीन्स कि वॉट एवर द कंटेंट यू हैव, जस्ट प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू द कंटेंट. इसमें कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फॉर द प्रिपरेशन. राइट कंटेंट है तो फिर अच्छा स्कोर कर पाओगे. अदरवाइज इफ यू आर थिंकिंग कि चलो जस्ट लूसेंट को आपने रिवाइज कर लिया, जस्ट अरिहंत का रिवाइज कर लिया, सो दीज क्वेश्चन आर नो डाउट गुड क्वेश्चंस, but they are for multi-purpose exam. For specific exam you need a specific content. तो इसी टाइप के क्वेश्चन पे बेसिकली फोकस करना. Which of the following is the brightest star? So correct answer इसका हो जाएगा Venus. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, the earth is at largest distance from the sun
अपेलियन ऑन, सो यहाँ पे कौन से डेट को जो अर्थ होता है सन से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होता है, दिस डेट इज कॉल्ड अपेलियन। और ये कौन सी डेट होती है बेसिकली, सो करेक्ट आंसर याद रखना इसका जुलाई 4। इट मीन्स ये जो समझो फॉर एग्जाम्पल ये सन हो गया, तो ये जो अर्थ होता है ना, ये जिस पोजीशन पे समझो यहाँ पे अर्थ होता है, कभी यहाँ पे अर्थ होता है, कभी यहाँ पे अर्थ होता है, कभी यहाँ पे, तो इस तरह से जो ये अपने ऑर्बिट इस तरह से जो घूमते रहता है, तो ये जो डिस्टेंस होता है 4 जुलाई को होता है, ये 4 जुलाई को सन से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होता है अर्थ। ओके, सो ये होता है 4 जुलाई, याद रखना। ऐसे ही कॉमन सेंस थोड़े से डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के भी पूछ लिए जाते हैं। द साइंस ऑफ ड्राइंग मैप इज कॉल्ड, अब देखो साइंस ऑफ ड्राइंग मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी बोलते हैं, कार्टोग्राफी, ज्योग्राफी, टोपोलॉजी एंड जियोलॉजी। सो इजिली यू कैन एलिमिनेट इफ यू आर अवेयर अबाउट द जियोलॉजी क्या होता है, टोपोलॉजी क्या होता है, टोपोलॉजी नेटवर्किंग फील्ड से है, ज्योग्राफी इट्स स्टडी ऑफ द अर्थ एंड वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो एक रिमेनिंग ऑप्शन बचता है, अगर एग्जैक्टली आपको नहीं भी पता है तो आप एलिमिनेट करके इस आंसर को मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे कार्टोग्राफी इट्स कॉल्ड द साइंस ऑफ ड्राइंग मैप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द मोस्ट अबाउंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट लेयर पे जो सबसे ज्यादा एलिमेंट्स है, कौन सा, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलिकॉन है, कार्बन है। तो बेसिकली देखो सोलर सिस्टम के बाद नाउ स्टडी अबाउट द अर्थ के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होता है, अर्थ के लेयर, अर्थ पे जो मेटल है, जो एलिमेंट्स है, उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है 46.46%, समटाइम this percentage may be asked in your exam. Next, what is the percentage of the nitrogen in atmosphere of earth? So here are the percentage, so correct answer 78.03, as well as here my suggestion is also just study about the ozone layer, Montreal protocol. So this is also very favorite and expected area from where you can see the question. Victoria Falls in Africa are located on. After that देखो अर्थ के बारे में आपको स्टडी करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन से कैसे आप सिलेबस को कनेक्ट कर रहे हो, अर्थ को कर लिया, नाउ स्टडी अबाउट द वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये जो होते हैं वर्ल्ड के जो वर्ल्ड के सबसे वैल्कनो प्लेसेस, वर्ल्ड के वेल नोन रिवर, वर्ल्ड के जो इस तरह से विक्टोरिया फॉल्स हो गया, रिवर्स हो गया, माउंटेन हो गए, वैल्कनो प्लेसेस हो गए, यही सब सारे क्वेश्चन से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग रखनी है। सो रिवर नाइजर, रिवर कांगो, रिवर जिम्बांजी, रिवर नाइल। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवर जिम्बांजी, जिम्बाजी विच इज इन जिम्बाब्वे। Where is the world deepest trench, Marina Trench located? देखो अब यहाँ पे क्या है, दिस इज व्हाट, डीपेस्ट ट्रेंच। अब ऐसे हाईएस्ट माउंटेन, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज अगर आपसे पूछ दिया तो आप कमेंट में बताओ वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज क्या नाम है उसका, बेसिकली व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। इफ आई विल आस्क अबाउट द हाईएस्ट माउंटेन रेंज, तो माउंट एवरेस्ट सबको पता है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज आपको कमेंट में बताना है। आई वांट टू सी हाउ मेनी पीपल विल पोस्ट द करेक्ट आंसर। सी हियर, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, इन पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में ये मरीना ट्रेंच है, यहाँ पे डिटेल्स में आप देख सकते हैं। द मरीना ट्रेंच इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, कंसीडर द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। द नैरो स्ट्रिप of land joining two land masses in called, it means जैसे दो बड़ा सा इस तरह से बोल सकते हो ना, एक कॉन्टिनेंट या प्लेसेस है, और उस वहां पे एक नैरो सा कोई लैंड प्लेस जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, तो इट्स कॉल्ड व्हाट बेसिकली। सो कैप्स बोलते हैं, इस्तमत बोलते हैं, स्ट्रट बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं, तो व्हाट इट्स कॉल्ड बेसिकली। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका इस्तमस। Isthmus of Panama is very famous, which joined the North America and South America. North America and South America जो कनेक्ट करता है एक नैरो स्ट्रिप लैंड का, इट्स कॉल्ड द इस्तमत। और एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है जो टू मेन लैंड के बिटवीन नैरो स्पेस होता है वाटर का। जैसे देखो ये इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, दिस इज व्हाट इंडिया, ये है आपका श्रीलंका। सो यहाँ पे जो नैरो स्पेस, नैरो वाटर स्पेस बेसिकली बिटवीन द टू मेन लैंड इज कॉल्ड व्हाट, स्ट्रेट इसको बोलते हैं, इट्स कॉल्ड द स्ट्रेट। बट अगर से इन्हीं दोनों के बिटवीन एक लैंड स्ट्रिप ऐसा कोई रास्ता बन जाए जो कि लैंड का जो टू मेन लैंड को कनेक्ट करे, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, इस्तमस बोल सकते हो। अगर से यहाँ पे कोई ऐसा प्लेस होता है, ऐसा कोई एक तरह से कनेक्ट करने का लैंड प्लेस होता, तो देन वी कैन से दिस इज व्हाट इस्तमस। जैसे कि जो एक नॉर्थ अमेरिका और इस तरह से मैं अगर बना दूं तो साउथ अमेरिका को यहाँ पे कनेक्ट करता है, विच इज कॉल्ड द Isthmus of Panama. Okay, तो इट्स कॉल्ड द इस्थमस। तो ये अंडरस्टैंडिंग बेसिकली रखो आप। इन विच कंट्री इज द टकला मकान डेजर्ट सिचुएटेड। सो अब देखो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेट करके कुछ भी हो सकता है, चाहे डेजर्ट हो, चाहे रिवर हो, चाहे वैल्कनो प्लेस हो, माउंटेन हो, वॉट एवर। सो दिस टकला मकान डेजर्ट इट्स सिचुएटेड इन
चाइना। ओके, चाइना का काफी फेमस है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ द इंडिया इज एन एक्टिव वैल्कनो फाउंडेड? सो नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द इंडिया। इंडिया का एक्टिव वैल्कनो कौन से प्लेस पे है? सो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बारेन आइलैंड, अंडमान निकोबार बारेन आइलैंड। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड काफी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन फ्रेम होता है। द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो टोटल कोस्ट लाइन है वो कितने किलोमीटर का है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7500 किलोमीटर। तो देखो, इंडिया से रिलेटेड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, सबसे फर्स्ट थिंग इज व्हाट, जस्ट इंप्रूव योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सोलर सिस्टम, देन अबाउट द अर्थ, देन अबाउट द वर्ल्ड ज्योग्राफी, बेसिक सारे डिटेल, हर कंट्री का जाके एकदम डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, रिवर, माउंटेन और वैल्कनो रिलेटेड, ये सब जो सारे कुछ स्पेसिफिक थिंग्स होती हैं वो आपको सिर्फ पढ़ना है। उसके बाद इंडिया, इंडिया की बाउंड्री लाइन, इंडिया से रिलेट करके जो भी थिंग्स इंपॉर्टेंट है, उसके बाद और भी हम इंडिया से रिलेटेड डैम, रिवर, ये सब सारे क्वेश्चंस होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सह्याद्री माउंटेन? देखो, इंडिया से रिलेट करके सह्याद्री माउंटेन, इट्स कॉल्ड द ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, शिवालिक एंड विंध्य रेंज। करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट है यहाँ पे द फर्स्ट प्रोटोकॉल टू बैन द इमिशन ऑफ chlorofluorocarbon in the atmosphere was made in. So basically this question is related to ozone layer, destruction of the ozone layer, depletion of the ozone layer. So my suggestion is what, just understand, just try to read about the ozone layer, what are the gases are responsible for destruction of ozone layer, okay, and for the production of the ozone layer what are the initiative had taken by the authorities, ये सब सारे पार्ट आप ट्राई करो अपडेट करने का। ओके, सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसका, जिनेवा एंड फ्लोरिडा। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सो वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, हर चीज जो मैं गाइड कर रहा हूं उसको आप इंप्लीमेंट करोगे तो काफी अच्छा स्कोर करोगे, नो डाउट। द ग्रेट वन हॉर्न राइनो, इंडियन राइनो इज इन राउंड इन, सो बेसिकली इन विच नेशनल पार्क दे आर रिलेटेड टू विच नेशनल पार्क? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं नेशनल पार्क से कनेक्ट करके पूछ लेगा। सो दे आर belong to the Kaziranga National Park, which is situated in Assam. Next यहाँ पे which one of the following region of India is now regarded as an ecological hotspot? तो इंडिया में कौन सा ऐसा एरिया विच इज इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट के लिए काफी फेमस है? सो वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। सो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट इट मीन वहां पे वैरायटी ऑफ द जो इकोलॉजिकल थिंग्स होते हैं, तो you can see here, तो वेस्टर्न घाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द इंडियन स्टेट विच हैव कॉमन बॉर्डर विथ पाकिस्तान, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेट विच शेयर द बॉर्डर विद द पाकिस्तान? सो इज इट गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर? सो करेक्ट आंसर इसका रिमेंबर रखो, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब एंड राजस्थान, दीज आर द स्टेट विच शेयर द बाउंड्री बॉर्डर विद द पाकिस्तान। नेक्स्ट यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कॉल्ड द गार्डन ऑफ स्पीसीज? वेरी वेरी फेवरेट निक नेम रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, सो सिलिकॉन वैली किस सिटी को बोलते हैं, पिंक सिटी किसको बोलते हैं, गार्डन ऑफ स्पीसीज किसको बोलते हैं, गोल्डन सुगर बाउल ऑफ इंडिया किस स्टेट को बोलते हैं? तो ये हो गया निक नेम वाले क्वेश्चन। तो जो भी कंटेंट आपके पास है वहां से इस निक नेम वाले को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। सो दैट्स व्हाई हियर आई इंक्लूडेड द वन क्वेश्चन, बट दिस वन क्वेश्चन विल गिव यू द हिंट कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो यही मेरा मेन पर्पज है कि आउट ऑफ दिस 25 क्वेश्चन आपको आइडिया लग जाए कि कौन कौन से एरिया पे फोकस करना होता है। ऐसे मैंने हिस्ट्री में आपको बताया था, ऐसे मैंने पॉलिटी में बताया था, एंड देन विल डिस्कस इन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। ओके, सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा केरला। केरला इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज नोन एज। सो सारे बाउंड्री लाइन अच्छे से अपडेट कर लो। इंडिया शेयर द बाउंड्री विद द चाइना, ये आपके लिए एक्सपेक्टेड भी हो सकता है, बिकॉज करेंटली देयर इज अ इशू गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इट्स रिलेटेड टू द चेंज द नेम ऑफ द सम प्लेसेस बाय द चाइना। ओके, इंडिया ऑब्जेक्टेड ऑन इट। सो कहीं ना कहीं ये न्यूज में है अरुणाचल प्रदेश वाला मैटर, तो शायद से आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे तो यही पूछ लेगा कि इंडिया और चाइना जो बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इट? सो मैकमोहन लाइन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट यहाँ पे विच मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वॉज टेकन अप फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। सो इंडिया के जितने भी वेल नोन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है उनको बेसिकली ट्राई करना, अंडरस्टैंड करने का। जो वेल नोन डैम है उनको ट्राई करना रिवाइज करने का। सो दामोदर वैली प्रोजेक्ट काफी फेमस है, इट्स इन वेस्ट बंगाल एंड झारखंड एंड वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सुगर बाउल ऑफ इंडिया? देखो जो मैंने बोला था, यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैंने निक नेम से रिलेटेड फॉर्म किया। इट मीन्स निक नेम सेक्शन इज वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। सो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ओके, सो नेक्स्ट वन, द वाटरफॉल विद द हाइएस्ट फॉल इन इंडिया इज? सो जॉग फॉल कर्नाटका,
कोट्टुलम फॉल तमिलनाडु, बाराघाट फॉल मध्य प्रदेश एंड इतिपोटला फॉल्स आंध्र प्रदेश. सो विच वन इज द हाईएस्ट फॉल, हाईएस्ट वाटरफॉल. तो अभी इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, हाईएस्ट रिवर, जो लॉन्गेस्ट रिवर है, हाईएस्ट वाटरफॉल. सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जोग फॉल कर्नाटका. ठीक है. नेक्स्ट है इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एट. अब देखो जो करंटली काफी एटॉमिक बम से रिलेटेड आप वीडियोस आप न्यूज पे देख रहे हो, क्योंकि अभी एक मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिला है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, विच इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक बम. तो अब अगर एग्जामिनर के माइंड में आ गया कि इससे कुछ पूछना है स्टूडेंट से, तो हो सकता है कि इंडिया के बारे में पूछ ले. तो इंडिया से रिलेट करके आप एटलीस्ट रिमेंबर रखो कि इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एट विच प्लेस, पोखरण. बाय द वे इससे रिलेटेड सारे डिटेल्स भी अपडेट कर लेना, कब हुआ था, किस तरह से हुआ था, व्हाट आर द नेम ऑफ द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन इट. ये सारे चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम्स के लिए. द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ह्यूज लैंड मास कॉल्ड. जो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट है, मतलब जो इंडिया के मैप में आप ये वाला पार्ट देखते हो ना, यहां से मतलब इसके ऊपर तो समझो यहाँ पे ऐसा गुजरात वाला पार्ट हो गया, ये समझो इस तरह से अगर मैंने मैप बना दिया, तो ये यहां से ये वाला जो पार्ट है ना, इट्स कॉल्ड द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया. सो इस पार्ट को बेसिकली क्या बोलते हैं, सो जुरासिक लैंड मास, आर्यव्रत, इंडियाना एंड गोंडवाना. सो इस वाले पार्ट को, ये जो यहां से लेके यहां तक वाला पार्ट है, मतलब ये पूरा इसमें आ जाएगा, ये मैप में. तो इसको क्या बोलते हैं, तो बेसिकली जब भी आप पूरा ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड कॉन्टिनेंट इन सबको बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको बोलते हैं गोंडवाना कॉन्टिनेंट या गोंडवाना लैंड. अब इसकी एक हिस्ट्री है कि जो मोर देन 118 मिलियन ईयर एगो जो अर्थ जिस तरह से मूव हुआ, फिर यहाँ पे आके हिमालयन रीजन से वो टच हो गया, जिसके रीजन से यहाँ पे हिमालयन माउंटेन आप देखते हो. तो ये पूरा अलग स्टोरी है. जब कभी ज्योग्राफी का मेरा डिटेल लेक्चर देखोगे when you will join the maneuver, तो उसमें मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि हाउ दिस कॉन्टिनेंट ये किस तरह से बना हुआ है और इस लैंड को गोंडवाना लैंड क्यों बोलते हैं. दिस इज द रीजन कि आप गुजरात में जो लॉयन देखते हो, दे आर वेरी सिमिलर टू अफ्रीकन लॉयन जो गिर, तो उसका भी एक अलग रीजन है. तो वो सब पूरा डिटेल जब डिस्कशन होता है तो उसमें हम डिस्कस करते हैं. सो गोंडवाना कॉन्टिनेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. Which one of the following was the first paper currency issued by the RBI? तो देखो RBI से रिलेट करके कुछ इस तरह से, मतलब अब फर्स्ट पेपर करेंसी पूछ लिया है तो हार्डली आई थिंक कोई अवेयर होगा. तो अगर जो नहीं अवेयर है तो समझ लो. तो RBI, अब यहाँ से जो अंडरस्टैंडिंग वाली पार्ट है, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि नोट कौन रिलीज करता है, 1 रुपीज के पे नोट पे किसका सिग्नेचर होता है, ठीक है, कहाँ पे पेपर प्रिंटिंग प्रेसेस है इंडिया में, ये सब सारे पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. नेक्स्ट है यहाँ पे द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP अभी रिसेंटली चल रहा था फॉर मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ईच ईयर आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन. तो देखो MSP अभी रिसेंटली न्यूज में था, अगस्त एग्जामिनर के मूड में आया तो डेफिनेटली आपको इकोनॉमी सेक्शन से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है. सो याद रखना, कमीशन फॉर द एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, दिस इज द नेम ऑफ द कमीशन. नेक्स्ट है हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया. इंडिया के प्लानिंग कमीशन इजी एंड मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन में रख सकते हो अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग. सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा ही विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ, एक्स ऑफिशियो मतलब बाय डिफॉल्ट चेयरमैन किसका होगा, प्लानिंग कमीशन का. एंड प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू. अभी प्लानिंग कमीशन का जो नाम चेंज कर दिया गया है, नाउ इट्स नोन एज व्हाट, नीति आयोग. याद रखना 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को स्टैब्लिश किया गया था आफ्टर रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन. नाउ इट्स नोन एज अ न्यू इंस्टीट्यूशंस. द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया वाज रिटन बाय. अब देखो यहाँ पे एक बुक एंड राइटर से भी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी सेक्शन से. तो M विश्वेश्वरैया, काफी वेल नोन पर्सनालिटी इंडिया के, विश्वेश्वरैया एन इंजीनियर एंड पॉलिटिशियन, अथर द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934. नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द नीति आयोग, जो भी मैं बता रहा था. नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश्ड 1 जनवरी 2015 आफ्टर रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन. एंड यहाँ पे आपसे पूछ रहा है नीति आयोग का फुल फॉर्म. सो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म याद रखना. शायद से फुल फॉर्म रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे, बट हाँ इसके एस्टैब्लिशमेंट से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th 5-year प्लान ऑफ इंडिया. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मोस्टली स्टूडेंट का डाउट होता है कि इकोनॉमिक्स से क्या पढ़ना है. तो सबसे पहली चीज नोट कर लो, स्टार्टिंग के 1st से लेकर 5 तक जो 5 ईयर के प्लान, 5 ईयर और 3 ईयर्स, उसमें कुछ फेल भी हुए थे बिकॉज ऑफ द चाइना वॉर. तो जो इनिशियल्स 5 ईयर्स प्लान को स्टैब्लिश फॉर्म किया गया था एंड उनका पर्पस क्या था, एंड दे आर बेस्ड ऑन विच मॉडल, और क्या क्या उनकी प्रायोरिटी सेक्टर था. ये सब सारी चीजें आप स्टार्टिंग से 1st से लेकर 5 तक वाला इतना अच्छे से स्टडी कर लो, वहां से हाईली एक्सपेक्टेड चांस होता है. तो यहाँ पे 12 5-year प्लान के रिलेटेड पूछ रहा है. तो फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ. अब ये मैंने क्यों फॉर्म किया, बिकॉज 12 के बाद
प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया गया और नीति आयोग को इंप्लीमेंट किया गया, और फिर दूसरे मॉडल पे अभी डेवलपमेंट के फेजेस चल रहे हैं। 5 ईयर जो प्लान चला था उसको बंद कर दिया गया। ये 2012 से लेके 17 तक का प्लान था, बट इन बिटवीन 2014 में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और न्यू एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म होती है। मोदी जी प्लानिंग कमीशन को बंद करके न्यू इंस्टीट्यूशन फॉर्म करते हैं। नाउ इट्स नोन एज व्हाट? नीति आयोग। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ इकोनॉमी कैन बी टर्म एज अ laissez-faire economy? So it's known as a mixed economy, socialist, command economy and capitalist economy. तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इकोनॉमी से रिलेट करके ये क्वेश्चन है। इकोनॉमिक नेचर ऑफ इकोनॉमी, टाइप ऑफ इकोनॉमी जो आप पढ़ते हो, फर्स्ट चैप्टर होता है ये इकोनॉमी का। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एन इकोनॉमी विच डज नॉट हैव एनी रिलेशन विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज व्हाट? जिसका बाहर की दुनिया से कुछ लेना देना नहीं हो, ऐसी इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? इज इट मिक्स्ड इकोनॉमी, ओपन, क्लोज एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी? तो सिंपल सा आप समझ सकते हो, अगर बाहरी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, इट मींस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का कुछ लेना देना नहीं है, ऐसी इकोनॉमी को बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी इट्स कॉल्ड। Which sector is considered as the workforce of Indian economy? So sector considered the workforce of Indian economy, primary, secondary, tertiary or none of these. So basically इंडियन इकोनॉमी के लिए जो मेन वर्क फोर्स माना जाता है, कौन से सेक्टर को माना जाता है? तो यहाँ पे आप जब भी आप जो भी कंटेंट फॉलो कर रहे हो एंड इफ यू आर अपडेटिंग योरसेल्फ रिलेटेड टू इकोनॉमी सेक्शन, सो जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मतलब एक तो डिफरेंट सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर, एंड आफ्टर दैट इंडियन इकोनॉमी का जो नेचर है सोशलिस्ट टाइप की इकोनॉमी है। इसके बाद जो वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप की इकोनॉमी होती है, सोशलिस्ट होती है, कैपिटलिस्ट होती है एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, तो इन सब से रिलेट करके बेसिक थोड़ी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना तो काफ़ी हेल्प होगा एग्जाम में। अगर से सेम क्वेश्चन ऐसा नहीं आया, इससे रिलेट करके क्वेश्चन आया तो इजिली यू कैन मार्क। सो यहाँ पे हो जाएगा प्राइमरी। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट विच ऑकर ड्यू टू मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब इज नोन एज। माई कंसर्न इज व्हाट कि अनएम्प्लॉयमेंट के जितने भी टाइप होते हैं वो अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने फॉर्म किया है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट के सारे टाइप जो 7-8 टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना। तो यहाँ पे जो एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब के तक पकड़ने के बीच में जो गैप होता है, उस गैप वाले पीरियड में जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इट्स कॉल्ड व्हाट? इट्स कॉल्ड द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोलते हैं। इसमें डिस्गास्ड अनएम्प्लॉयमेंट काफी फेमस है। डिस्गास्ड मतलब छुपी हुई बेरोजगारी जिसको बोलते हैं, छुपी हुई नहीं बोलते आई थिंक, जिसमें कैपेसिटी होती है जो काम करने की, उससे कम कैपेसिटी का वो काम करता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? डिस्गास्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, जीडीपी इज टोटल वैल्यू ऑफ जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड इट्स टोटल वैल्यू इज व्हाट? सो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज नोन एज द जीडीपी। महालनोबिस मॉडल हैज बीन एसोसिएटेड विथ 5 ईयर प्लान। कौन से 5 ईयर प्लान पे बेसिकली ये बेस है? सो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फिफ्थ 5 ईयर प्लान। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि स्टार्टिंग के फर्स्ट टू 5 इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान्स एंड दे आर बेस्ड ऑन विच मॉडल एंड व्हाट वाज द प्रायोरिटी सेक्टर, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, अच्छे से स्टडी करना रहेगा। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट है हु इज द सेंट्रल मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी इन इंडिया? सो इंडिया की जो सेंट्रल मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी है उसको किसको बोलते हैं? सो इट्स आरबीआई। आरबीआई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी काफी इंपैक्ट करती है इकोनॉमी पे। नेक्स्ट है यहाँ पे यूनियन बजट ऑफ द इंडिया इज प्रेजेंटेड बाय हुम एंड इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो इंडिया में प्रेजेंट जो बजट होता है कौन प्रेजेंट करता है और कौन से हाउस में करता है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं या अभी के लिए करती हैं जो निर्मला सीतारमण है, और लोकसभा में होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द यूनियन बजट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो अगर आपसे स्टैटिक इस तरह से जो हाईएस्ट सुपरलेटिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ लिया तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पी चिदम्बरम, आर के सन्मुखम शेट्टी, प्रणब मुखर्जी एंड मोरारजी देसाई। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मोरारजी देसाई। नेक्स्ट व्हेन डिड whom has HDI इंट्रोड्यूस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज इंट्रोड्यूस। तो ये भी इकोनॉमी का काफी अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के एग्जाम में, सीमैट जैसे एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1919 बाय द यूएनडीपी। पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हबीबुल हक क्रिएटेड द HDI in 1919 which was further used to measure the country development by the United Nations Development Program UNDP। नेक्स्ट यहाँ पे इन द रिसेंट ईयर द इंडियन इकोनॉमी हैज बीन कैरेक्टराइज्ड एज अ बैकवर्ड इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तो रिसेंट ईयर में जो एक टैग मिला है इंडियन इकोनॉमी को, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टैग या कैरेक्टरीज, जो भी बोलना है बोल लो। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेवलपिंग इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को डेवलप इकोनॉमी अभी नहीं बोलते हैं, इट्स अ डेवलपिंग इकोनॉमी। Name the international financial institution which control the exchange value of currency of the different country. So which control the exchange, काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। तो बेसिकली देखो, माई सजेशन इज व्हाट? WHO पढ़ लेना, यूनाइटेड नेशन पढ़ लेना एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अच्छे से पढ़ लेना।
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ लेना, बिकॉज एज पर द जो करंट सिनेरियो चल रहा है ना पूरा वर्ल्ड में, जो वॉर वाली सिचुएशन बनी है जिसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यूनाइटेड नेशन एंड कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक दो मैटर भी चल रहा है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो करंटली न्यूज में होते हैं, तो देन ऐसे इंस्टीट्यूशन पे फोकस करो और उनसे रिलेट करके उनके हेडक्वार्टर्स, हु इज द प्रेसिडेंट, हु इज द हेड, उनका एस्टैब्लिशमेंट, उनका पर्पस क्या था, ऐसी चीजों पे फोकस करोगे। एंड इंडिया से रिलेट करके अगर कोई इंडियन पर्सनालिटी उसमें एमडी, चेयरमैन ऐसा कुछ है तो उसको अपडेट करके रखो, तो वहां से आप इजीली कवर कर लोगे कोई क्वेश्चन फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे देखो जो मैंने क्वेश्चन फॉर्म किया, बेसिकली दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो IMF वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर है एंड वर्ल्ड बैंक ऑल्सो इन वाशिंगटन DC, तो इनके हेडक्वार्टर्स याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश इन ईयर, कौन से ईयर में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो 1995 देखो यहाँ पे सारे डिटेल दिया। WTO ऑफिशियली commenced 1st January 1995 under the Marcus Agreement signed by the 123 nation on 15 April 1994। ठीक है, सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन आर लुक्ड आफ्टर बाय, सेंट्रल स्टेट का जो फाइनेंशियल रिलेशन होता है वो कौन उसको मैनेज करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन एंड सरकारिया कमीशन। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फाइनेंस कमीशन इसको मैनेज करता है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज फॉर्मली नोन एज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्या बेसिकली बोलते हैं, सेंट्रल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, इंपीरियल बैंक एंड नेशनल बैंक। बेसिकली यहाँ पे किस बैंक के नाम को चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का बाद में नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे हाउ मेनी प्राइवेट कमर्शियल बैंक आर नेशनलाइज इन 1969, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। 1916 में कितने बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, तो इसका सिंपल सा आंसर है 14। और अगर से ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि अभी कितने नेशनलाइज बैंक बचे हुए हैं इंडिया में, तो उसका आंसर याद रखना 12 बैंक अभी बचे हुए हैं जो नेशनलाइज बैंक अभी करंट सिचुएशन में। नेक्स्ट है यहाँ पे इन डेवलपमेंट इकोनॉमी द मेजर शेयर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ओरिजिनेटेड इन द, किस डेवलप्ड इकोनॉमी में जो मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, टेरिटरी सेक्टर, नन ऑफ द एबव, प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा टेरिटरी सेक्टर, इट मींस सर्विस सेक्टर, जैसे बैंकर्स, CA, डॉक्टर्स, टीचर्स, ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, दीज आर व्हाट सर्विस सेक्टर है। ओके, तो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट यहां से जनरेट होता है इन अ डेवलप्ड इकोनॉमी। द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया हैज बीन डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, सो पॉवर्टी लाइन जो इंडिया में डिफाइन होता है किस बेसिस पे होता है, सो यहाँ पे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सो कैलोरीज इनटेक इंडेक्स ऑफ द पीपल, कितना कैलोरीज लोग कंज्यूम करते हैं, उस बेसिस पे यहाँ पे डिफाइन होता है पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट यहाँ पे इकोनॉमिक्स रिफॉर्म एंड लिबरलाइजेशन वेयर इंट्रोड्यूस इन इंडिया, प्लानिंग इन, काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, विच वॉज इंट्रोड्यूस इन 1991। तो यहाँ पे 90s के पीरियड में आप बोल सकते हो कि 90s में इट वॉज इंट्रोड्यूस। सो इन 1991 LPG पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस। एंड उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, याद रखना, एंड काफी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। बेसिकली मेरा सजेशन रहेगा कि इसको अच्छे से पढ़ लेना, दिस कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पॉलिसी, LPG पॉलिसी। Okay, so these all are the top important 50 questions guys from the economy and geography section. So these questions are helpful for you to understand कि किस एरिया से कहाँ से questions frame हो सकता है, किस टाइप के question frame हो सकता है। And my suggestion is that just try to update such type of the content if you have. If you don't have such type of the content, so just do one thing, you can visit our website, for example maneuveredu.com. Here you can see and जस्ट लेट मी हाइड माई सेल्फ, एक सेकेंड में अपने आप को हाइड कर लेता हूं तो ईजिली आपको दिख जाएगा। ओके, सो ओके, नाउ होप सो इट्स विजिबल। सो बाई ऑनलाइन, हियर इज अ वन लिंक, बाई ऑनलाइन MBA entrance, where you will click so full course, and when you will click on full course, so here you can see CMAT 2024 self study program. So in a self study program you will get everything, it means video lecture related to mathematics, reasoning, GK, all the video lectures you will get for the practice purpose. But if you want only sectional program, for example related to GK, so in this part here you can see GK and current affairs program also, you can enroll for that, which will be helpful for you. And mock test is very important if you want only mock test to improve your marks and speed. So here all the full length mock test and the GK related mock test and topic wise mock test, everything is here for your preparations. And even if you have a doubt, any query, so you can call on the number which is mentioned in the description, and also you can see on a screen, I will show you. So for the books and ebooks, here you can see non-MBA books which is helpful for you and for your preparations. So
these all are the important program which will be helpful for you guys. Okay, so if you're not scoring good, if you're struggling in a GK section, if mock में अच्छे marks नहीं आ रहे हैं या study material का problem है, right study material जो मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया जिस type के question, if you want to practice such type of the questions, so definitely if you have, so which is fine, otherwise you can join this program. This will be very and very helpful. एक dedicated material काफी help करता है आपके time saving में as well as in your preparation. Okay, so if you are planning for this year, so these program may be helpful, will be helpful for you. And if someone is planning for the next year and they want to start their preparation from the scratch, so for classroom and for online, if you are Mumbai based, so classroom program के लिए inquire कर सकते हो, and for online के लिए इस number पे inquire कर लो. Our counselor will guide you in details, and you will get everything, video lecture, mock test, and expert faculty will guide you. Okay, so that's it from today's session, and hope so this video will be helpful for you. And don't forget to सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना क्योंकि काफी वैल्यूएबल कंटेंट है आपके लिए. एंड इवन इफ यू हैव एनी डाउट, सो यू कैन आस्क इन कमेंट, एनी रिक्वेस्ट, एनी सजेशन, व्हाटएवर. ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट पार्ट वेयर वी विल डिस्कस द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस रिलेटेड टू करंट अफेयर्स एंड आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, व्हाटएवर एज पर योर कमेंट. इट्स डिपेंड कि जो भी डिमांड आपका होगा आप बता सकते हो कमेंट में. करंट अफेयर्स चाहिए लास्ट 6 मंथ का, या फिर आर्ट एंड कल्चर पे वीडियो पहले चाहिए, या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियो चाहिए, जो भी आप कमेंट में ज्यादा आएगा एज पर द मेजॉरिटी आई विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट सेशन वेरी सून. ओके, सी यू इन नेक्स्ट सेशन. थैंक यू एंड जय हिंद.